Hello and welcome to this series of PT 365 Science and Technology Explanation. We have done topics like IT and computer, space technology and health in last lectures. In this lecture we will deal with mainly with defense, and if time permits, in last lecture we could not cover alternative energy and we have topics such as awards and prizes, and this some miscellaneous topics have been remaining. We will try to cover these topics, otherwise we will definitely cover this defense portion of this as well as the two updated PT 365s. Alright, so let's see what we have in hand. We have these topics and we'll start with them. Okay. So in this video, basically in these lectures we are covering these topics as well as we are also focusing on how UPSC tends to ask questions, from where the questions could be framed, and in previous years from which topics and from what areas specifically within the topics, in what style UPSC has asked questions. ठीक है, तो our approach is not of just explanation, our approach is of question based learning. Alright, so that the upcoming exam on 28th May could be handled easily. Alright, we are dealing with those topics and with those points which would directly be asked as questions. ठीक है, so our approach is not to explain some topic in too much detail which would just be a waste of time as of now, because a few days are left. You can count that in hours. Alright, so if you go into studying some topic with detailed app explanations, that would not give benefits to you and it would just be a waste of time. As for now, you need to know just the important facts and which would come directly into the exam, and you could mark those facts in the options and you could get the marks. ठीक है, तो अभी आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अभी आप उन टॉपिक्स या उन पॉइंट्स को बस सामने लाएं, अपने पढ़ें उनको जो कि एग्ज़ाम में आएंगे एज सच, ना कि गोइंग इनटू टू डीप. वो जो जाना होगा ना, दैट एक्सप्लेनेशन दैट वुड बी एसेंशियल फॉर मेंस. ऑलराइट, and after 28th we could start a series on that also, of proper going into too much of explanation and taking a topic into its length and breadth. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं without wasting more time. Let's start with this topic. What is this? We have solid fuel ducted ramjet technology. ठीक है, तो इसको समझने से पहले we should know what is this ramjet technology और what is this ramjet. ठीक है, तो we'll first learn that, then we'll come back to this topic SFDR technology. उससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सम डेवलपमेंट्स बाई DRDO, दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो DRDO क्या है? इट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. ठीक है, बेसिकली इट फोकसेस और इट एम्स टू डेवलप स्टेट ऑफ द आर्ट technologies so that our defense, our army, our air force could be capable of dealing to threats or other matters. ठीक है, कि हम एक ग्लोबल लेवल पे we also stand head to head with other armies which are very much developed in terms of technology. ठीक है, तो DRDO works in that matter. ठीक है, it provides technological solutions to the services, armed navy and air force. ठीक है, it also equips armed forces with state of the art weapon system and equipment. ठीक है, and some of the major you would be knowing already, Agni, Prithvi series of missiles. These have and BrahMos, light combat aircraft. We will deal with these also in further coming time. ठीक है, first let's get started with this ramjet. What is this ramjet? ठीक है, तो रामजेट में क्या होता है? व्हाट फैक्ट्स यू नीड टू नो फॉर नाउ. एग्जाम के लिए आपको क्या ज़रूरी है? पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जैसे व्हीकल आगे मूव करता है, रामजेट इंजन और यूजेस बेसिकली द इनकमिंग एयर फॉर कंबशन. ठीक है, और इसमें कोई रोटेटिंग कंप्रेसर नहीं होता, अनलाइक टर्बोजेट इंजन. मतलब उसमें बाकी इंजन में क्या होता है? कंप्रेसर होता है ना, रोटेटिंग, देयर आर रोटेटर्स, बट रामजेट में इट डज नॉट हैव, इट जस्ट कंप्रेसेस द इनकमिंग एयर. ठीक है, सेकेंड चीज़ यू शुड नो, दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इट वर्क्स एट अ सुपरसोनिक स्पीड अराउंड मैक 3. ठीक है, साउंड की स्पीड को मैक 1 अगर कहते हैं तो देन इट इज़ द 3 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो ऑपरेट अप टू स्पीड ऑफ मैक 6. ठीक है, मैक 3 से 6 के बीच में करती है, बट
its efficiency starts to drop at hypersonic speeds. Alright, and it does not have any turbine, I have already told you. तो जो इसकी हाइपरसोनिक स्पीड पे एफिशिएंसी गिरती है उसको कवर अप करने के लिए वी हैव दिस स्क्रैमजेट इंजन और सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, ठीक है. इसकी दिस इज मोर एफिशिएंट एट हाइपरसोनिक स्पीड्स एंड इट ऑल्सो अलाउज सुपरसोनिक कंबशन, ठीक है. This scramjet engine uses hydrogen as fuel and oxygen from the atmospheric air as oxidizer. You should know this thing कि हाइड्रोजन को ये एज अ फ्यूल यूज़ करती है और ऑक्सीजन को एज एन ऑक्सीडाइजर यूज़ करती है. दीज आर जस्ट द फैक्ट्स यू शुड नो. इसके अलावा इन दोनों में ही रामजेट एंड स्क्रैमजेट में देर आर नो मूविंग पार्ट्स, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस डुअल मोड रामजेट. दिस बेसिकली ट्राइज टू ओवरकम द इनएफिशिएंसीज और डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस इंजन्स. ये when a ramjet transform into scramjet over 4 to 8 रेंज, मैक 4 to 8 रेंज. इनिशियली जब इंजन स्टार्ट होगा इट वुड फंक्शन एज अ रामजेट इंजन, बट जैसे ही इसकी स्पीड 4 to 8 मैक के करीब पहुंचेगी, मैक 4 to 8 के करीब पहुंचेगी, इट वुड चेंज इट सेल्फ इंटू स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है. एंड इट कैन ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड, ठीक है. यू गॉट दिस पॉइंट. इसकी for what things you need to remember about, you do not need to go into engineering details of this. बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा होगा अपने पावर प्लांट सब्जेक्ट में, ठीक है. 7th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होता है पावर प्लांट उसमें पढ़ रखा होगा. बट दिस इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स. यूपीएससी प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट आपको है कि आपको पता होना चाहिए इसका कंबशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, किस स्पीड पर काम करता है, एंड what are similar things for this scramjet and then for this dual mode ramjet, ठीक है. So let's come back to this main topic. DRDO successfully flight tested SFDR booster. ये क्या है? It is a missile propulsion system that includes thrust modulated ducted rocket, all right, and with a reduced smoke nozzle-less missile booster. बेसिकली दिस सिस्टम जो ये जो SFDR टेक्नोलॉजी है ये सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट यूज़ करता है, ठीक है. जैसे कि आपका जो रैमजेट मैंने भी आपको बताया पहले कि इट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ना ड्यूरिंग फ्लाइट, बट दिस इज लाइट इन वेट एंड कैरी मोर फ्यूल बिकॉज इट इज़ यूजिंग सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन, ऑलराइट. एंड इट some of the significance you should know कि it enables the missile to intercept aerial threats and it can develop long range air to air, it can help to develop long range air to air missiles. This is a technology which can help to develop long range air to air missiles. Also it can help to achieve longer ranges as they do not require oxidizers, ठीक है. क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वजह से हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई इट कैन गो अप टू लॉन्गर रेंज, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. व्हाट इज दिस पोस्ट, ऑलराइट. यू मस्ट बी नोइंग दैट रिसेंटली द लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है. तो दिस वॉज इनिशियली स्टार्टेड इन 2019 एंड ही इज़ द हेड ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एज अ 4-star मिलिट्री ऑफिसर. क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कितने स्टार का मिलिट्री ऑफिसर इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. How many stars? Is it 5 stars? Is it 3 star? So you should know it is a 4-star military officer. He is a, alright. And what is the eligibility? Any serving or retired lieutenant general, air marshal, or vice admiral. He would come from army, he would come from air force, and he would come from navy. ठीक है. And anybody could come under the age of 62 years. ठीक है. And then next thing is this Kargil review committee. Naresh Chandra committee and this Shekatkar committee had proposed this. So if a question comes like this, these committees would be named and UPSC would ask what are these committees related to. Is it related to Panchayati Raj? Is it related to SEBI? Is it related to some other thing like criminalization of politics, reduction of criminalization of politics? Is it related to governor's role or is it related to chief of defense staff? So you would mark the chief of defense staff. इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में. नेक्स्ट इज टेन्योर कितना होता है? मैक्सिमम इट कैन एक्सटेंड अप टू 65 ईयर्स, ठीक है. या तो 3 साल और 65 ईयर्स ऑफ एज, ये होता है मैक्सिमम टेन्योर, ठीक है. सो आर्मी चीफ वुड रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स एंड देन दे कुड सर्व फॉर 3 years
or up to 65 years of age as Chief of Defence Staff. Whoever is appointed, either the Army Chief is appointed, or the Air Marshal is appointed, or the Vice Admiral, whoever is appointed, it is up to the Government of India. But the tenure would be this much, as it is specified already. So what is the role? He is the head. He heads the Department of Military Affairs within the Ministry of Defence and acts as a secretary. All right. He is also the permanent chairman of existing Chief of Staffs Committee. ठीक है, इसमें Chief of Staffs Committee में these posts, these persons are there. All right. Next is this member of Defence Acquisition Council, and he is also the member of Defence Planning Committee. Then there is he is also the principal military advisor to Defence Minister and also the military advisor to Nuclear Command Authority, which comes under Prime Minister. ठीक है, GSAT सीरीज सेटेलाइट, लास्ट टाइम हमने स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देखा था, बट GSAT सीरीज इज रिलेटेड टू द नेविगेशन प्रोवाइडेड टू द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस, द एयर फोर्सेस, नेवी. ऑलराइट. Indian Army reportedly tested the operational readiness of its satellite-based system deployed across the country under Operation Skylight. तो अगर Operation Skylight पूछता है तो you should know it is the readiness of satellite-based system of Indian Army. ठीक है. Unlike the Indian Air Force, Navy, the Army currently does not have dedicated satellite. The Army is using 30% of the communication capabilities of GSAT 7A. Alright, so you should know this thing. GSAT 7 series is related to providing communication needs of defense services. You should know this point only, and that is enough. Communication of armed force, this defense services. Then there is BrahMos. What is this BrahMos? You must be knowing what is actually BrahMos. It is a very popular topic actually. So recently Philippines signed a deal for purchase of BrahMos supersonic cruise missiles. अच्छा, अब missiles आती हैं. Whenever a question comes over missile, you should know how to read that topic, or how to read that topic for the purpose of examination, to clear exam. So your purpose should be to learn something in the perspective of examination, how UPSC asks question. इस वजह से previous year question भी बहुत important हो जाते हैं. ठीक है, तो BrahMos, पहला फैक्ट क्या है BrahMos से रिलेटेड? इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर लॉन्ग रेंज. सेकेंड, इट इज सुपरसोनिक. थर्ड थिंग, इट इज़ अ क्रूज मिसाइल. ठीक है, नाउ यू कैन रीड इट एंड यू कैन लर्न दीज थिंग. एट लीस्ट यू शुड नो दीज 3 पॉइंट. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज, इट इज़ अ सुपरसोनिक एंड इट इज़ अ क्रूज मिसाइल. ठीक है, अब क्रूज है तो उसके अपोजिट क्या हो सकता है? अदर देन क्रूज क्या हो सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है. सुपरसोनिक है, अदर देन सुपरसोनिक क्या हो सकता है? हाइपरसोनिक, सबसोनिक. ठीक है, मल्टीपल थिंग्स कुड बी देयर. सो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि सुपरसोनिक हो सकती है. यहाँ पे फैक्ट बदला जा सकता है एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट वुड बिकम रॉन्ग. तो इफ यू नो दैट सुपरसोनिक है तो आपके लिए अच्छा बात है. ठीक है, any missile or any technology is being developed, you should know with which of what are the organizations related to, or what are the organization responsible for the development of that technology. ठीक है, तो BrahMos जो मिसाइल क्रूज मिसाइल सिस्टम हमारा है, इसको किसने बनाया? इट इज़ बिल्ट विद द कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन DRDO, इंडिया की जो DRDO है, एंड रशिया की NPO. This is a Russian name. You need not to remember this thing. Just remember this. It is built with partnership of India and Russia. Russia is important thing. You would know it is Indian partnership because it is deployed in India. But the other partner, foreign partner, you should know कि it is Russia. Russia है. Israel नहीं है, USA नहीं है, जापान नहीं है. It is Russia. Alright. BrahMos. BrahMos का नाम कहाँ से आया? BrahMos, देखिए BrahMos है. How? Where does this name come from? BrahMos ब्रह्मपुत्र से आया. Brah and Mos comes from Moskva river in Russia. ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र and Moskva rivers led to this name, BrahMos name. ठीक है, and it is based on a fire and forget principle, and it is also a 2-stage missile. These are some other facts that you should remember this. Originally it was 290 kilometer. The range of missile was originally capped at 290 kilometer, but now it is extended to 450 kilometer and 600 kilometer. बिकॉज पहले हमारे अंदर ये ऑब्लिगेशन थी अंडर MTCR, दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. यू शुड नो दीज 4 रिजीम्स. दिस मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, MTCR. ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, देयर इज ऑस्ट्रेलियन ग्रुप. देन देयर इज 4th इज वासेनार एग्रीमेंट. ठीक है, तो यू शुड नो दीज नेम्स एंड व्हाट डज दिस
stand for or for what purpose these are formed. You should know these 4 agreements at least in the sector or in the field of defense. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका चाइनीज HD-1 सुपरसोनिक मिसाइल. सम मोर वी आर रीडिंग सम मोर missile system. It is a Chinese HD-1 supersonic missile system, and again not much to go for it. Then Tomahawk, it is a US and its allies. ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए. It is related to which country? ठीक है. Then there is Israel Seabreaker. Seabreaker किसका? Israel का. Then this is Yakhont. It is a Russian supersonic anti-ship cruise missile. You should know what is this Seabreaker, and you should know which country it is. It is a precision guided missile system and it is related to Israel. Similarly, Yakhont is a supersonic anti-ship cruise missile and it is related to Russia. You should know these things. So we were discussing cruise missile as BrahMos is a cruise missile. So what is cruise missile or what is a cruise? What is this technology basically? ठीक है. और then I also mentioned ballistic missile. So what is this? अगर देखो this trajectory, if it is following this trajectory, it is a ballistic missile. ठीक है, ballistic trajectory इसको बोलते हैं कि इसमें एक फ्लाइट मतलब एक ट्रेजेक्ट्री लेता है. बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री इसको बोलते हैं. यू मस्ट हैव रेड इन 11th क्लास फिजिक्स. ऑलराइट. तो इट इज़ पावर्ड बाय रॉकेट्स इनिशियली, बट देन दे फॉलो एन अनपावर्ड फ्री फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री. मतलब इनिशियली इट इज़ फायर्ड अप, फिर इट फॉलोज द ट्रेजेक्ट्री इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी और द बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री मोशन. ठीक है. अब आपको पता होना चाहिए कौन सी मिसाइल्स बैलिस्टिक हैं, कौन सी क्रूज हैं. दिस पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष आर बैलिस्टिक मिसाइल्स. ठीक है. एंड इट इज बेस्ड ऑन लॉन्च मोड रेंज प्रोपल्शन सिस्टम. देन एज वी वर डिस्कसिंग क्रूज मिसाइल्स, these cruise missiles are unmanned self propelled till the time of impact guided vehicle that sustains flight through aerodynamic lift. ठीक है. ये it can go near to the surface of earth as these are guided vehicle. ठीक है. and it is written they fly within the earth's atmosphere and use jet engine technology. ठीक है. these are guided and they go through the with the aerodynamic lift. ठीक है, for most of its path and it would hit the target eventually. So BrahMos of India, Harpoon of US, Exocet of France are some of the examples of cruise missiles. Then when we classify this subsonic, आपका आता subsonic, sonic is 1 Mach. All right. Subsonic उससे कम होगा, that is 0.8 Mach. Supersonic it would go up to 3 Mach. ठीक है, 2 to 3 Mach speed. Hypersonic is more than 5 Mach speed, which we have discussed in Ramjet. ऑलराइट. स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी हम जब डिस्कस करते हैं वहाँ पे भी हमने सबसोनिक सुपरसोनिक डिस्कस किया था. सो यू शुड नो व्हाट आर दिस. सोनिक स्पीड इज साउंड की स्पीड. ठीक है. तो 1 Mach इज द स्पीड ऑफ साउंड. तो अगर 1 Mach से कम है इट वुड बी सबसोनिक. सब मतलब कम. ठीक है. सुपर मतलब इट इज़ मोर देन दैट. ठीक है. ऑलराइट, गॉट इट. नेक्स्ट आते हैं कुछ और मिसाइल्स जो न्यूज़ में रही हैं. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अग्नि मिसाइल. थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें बिकॉज इट इज़ वेरी मच these things are written very small. All right, it would become easier for you basically. अग्नि मिसाइल क्या है? अब what you need to remember this, क्या आपको याद रखना. मैंने आपको बताया क्या याद रखना है इसमें, बैलिस्टिक है कि क्रूज है. तो अग्नि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस क्रूज एंड बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी. तो आपका अग्नि इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इंटरमीडिएट रेंज. रेंज भी डिस्कस करनी है. ठीक है. इट इज़ एज वी वर डिस्कसिंग क्रूज, वो वी वर डिस्कसिंग दैट BrahMos it was a long range. See here it is written, initially it was written long range. ठीक है. and this Agni is intermediate range. तो रेंज पता होना चाहिए. what it is cruise or ballistic ये आपको पता होना चाहिए. how much payload, how much load. ठीक है. एक तो रेंज की किलोमीटर, आपको रेंज पता होना चाहिए कितने किलोमीटर में. and then how much that weapon it can carry. ठीक है. warhead. ठीक है. how much it can carry, payload it can carry. तो ये 3000 किलोमीटर की रेंज. it has a range of more than, it has 3000 kilometers and carry payload of 1.5 tons. ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. and then it was conceived under IGMDP जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था. it was constructed under that अग्नि मिसाइल. तो अग्नि मिसाइल के बारे में हमने फैक्ट देख लिए. S-400 what is this? मेंस 2021 में, हाँ जी 2021 में इस पर क्वेश्चन आया था. what is this S-400 मिसाइल? So many people do not read this for mains, but अगर आपने prelims के लिए अच्छे से पढ़ रखा है then you would be able to answer such questions also if they appear in mains. Generally UPSC does not ask such questions in mains, but 2021 there was a googly type of from UPSC where they asked this S-400. तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों न्यूज़ में था. बेसिकली यूएस ने, रशिया से हमने ये लिया and US put a sanction on
इंडिया बिकॉज ऑफ दैट, मतलब S-400 जो भी परचेज करता था, US put sanctions on that country, but India got a waiver from US. India on track for sanctions waiver from US for buying S-400 missile system. ठीक है, अभी तक के जिन्होंने भी S-400, because there relationships between Russia and US are not on a happy note these days, that is why. Alright, S-400 is a mobile long range surface to air missile system. Mobile, you can see it is movable. ठीक है, मोबाइल का मतलब it can be moved from one place to another. ठीक है, लॉन्ग रेंज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग. देन इट इज सरफेस टू एयर, इट वुड बी फायर्ड फ्रॉम सरफेस एंड वुड हिट द टारगेट इन एयर. ठीक है, दिस थिंग एंड इट्स डिस्टेंस यू कैन सी फ्रॉम दिस 400 किलोमीटर, 250 एंड डिफरेंट मिसाइल्स विद इन दिस. ठीक है, एंड इट कैन एंगेज 80 टारगेट्स एट वन टाइम विद द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ 9 to 10 seconds. Then next topic is anti-tank guided missiles. What is this? It is, first of all, you should know that DRDO successfully test fires indigenously developed laser guided ATGMs from main battle tank Arjun. ठीक है, तो आपको अर्जुन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, it is a main battle tank MBT. Alright, then what is this ATGM? It employs a tandem high explosive anti-tank, ठीक है, heat जिसको बोलते हैं warhead, to defeat explosive reactor armor which are protected under armored vehicles. ठीक है, you can see this thing, this is anti-tank guided missiles. ठीक है, then this is MPAD GM. What is this? It is basically man portable anti-tank guided missile which can be, these missiles can be fired through the shoulder of a मतलब shoulder of a soldier, मतलब कंधे से. That is why it is all portable. You can see this portable term is here for that only. See, DRDO has recently successfully flight tested this. It is also indigenously developed anti-tank missile. लो वेट है, आपको पता, अगर आप शोल्डर से फायर कर सकते हैं, इट वुड बी अ लो वेट एंड इट इज़ अ फायर फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, जस्ट लाइक ब्रह्मोस, कि वंस यू फायर इट एंड यू गिव इट द टारगेट एंड इट वुड हिट दैट टारगेट. ऑलराइट, यू जस्ट नीड टू फायर एंड फॉरगेट इट एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम मैन पोर्टेबल लॉन्चर. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. Again, a DRDO successfully this indigenously designed missile system. It is a ship-borne weapon system. ठीक है, and it can strike aerial threats at close range. See, again, you need to know these ranges: 40 to 50 kilometer at an altitude of around 15 kilometer. ठीक है, you should know this thing. Yes. Then there is this quick reaction surface to air missile QRSAM. ठीक है, DRDO successfully completed 6 flight tests of QRSAM system. ठीक है, and what is this? It is again a short range surface to air missile. आपका नाम से ही establish होता है, it is a surface to air missile. It is again indigenously designed. One more thing you need to remember around these missiles is that I have already told you this thing कि क्या वो किसी foreign कंट्री के कोलैबोरेशन के साथ डेवलप की गई है या इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप. दीज डेज गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज टू इंडिजिनसली डिज़ाइन एंड डेवलप डिफेंस इक्विपमेंट्स. ऑलराइट, मेक इन इंडिया, विद इन द मेक इन इंडिया स्कीम और मेक इन इंडिया प्रोग्राम वी ऑल्सो हैव दिस इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स. ठीक है, सो यू शुड नो व्हाट आर द प्रोग्राम्स विद इन दिस. सो लेट्स मूव ऑन. इसके अच्छा QRSAM की रेंज है 25 से 30 किलोमीटर. यू शुड नो दिस थिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम. दिस इज अ मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, अगेन मैन पैड जिसको हम बोलते हैं, एंड इट कैन न्यूट्रलाइज लो एल्टीट्यूड एयर थ्रेट्स at short ranges. It is propelled by a dual thrust solid motor and incorporates miniaturized reaction control system and integrated avionics. ठीक है, next is Helena. What is this Helena? It is indigenously developed by DRDO helicopter launched anti guided मिसाइल सिस्टम. ठीक है, ये हेलीकॉप्टर में अटैच्ड होगा. ठीक है, हेलीकॉप्टर के में से लॉन्च किया जाएगा. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन हेलिना. हेलिना में यू कुड सी दिस थिंग. ठीक है, हेलीकॉप्टर बेस्ड नैग मिसाइल है. ठीक है, इट इज़ अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास ATGM. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ATGM. व्हाट इज दिस ATGM? Mounted on the advanced light helicopter. We'll go by this ALH. What is this advanced light helicopter? We'll further study this thing. अभी के लिए आपको बताना चाहिए ALH में this Helena is attached.
ठीक है, it is based on fire and forget principle and this system has all weather day and night capability, ठीक है. Then there is Astra Mark 1 beyond visual range BVR जिसको बोलते हैं एयर टू एयर मिसाइल्स, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड फॉर अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल्स, ठीक है. व्हाट इज दिस BVR टेक्नोलॉजी? और BVR मिसाइल्स कैन एंगेज बियॉन्ड द विजुअल रेंज ऑफ 37 किलोमीटर्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस BVR मिसाइल? देन एयर टू एयर यू कैन अंडरस्टैंड शॉट फ्रॉम एयर एंड हिटिंग ऑल्सो इन एयर. दिस मिसाइल हैज़ बीन डिजाइन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन फाइटर जेट्स लाइक सुखोई 30 Mark 1, तेजस ऑफ द IAF एंड MiG 30. एयर टू एयर है, अगर आप एयर टू एयर है ऑब्वियसली टू बी माउंटेड ऑन सम एयरक्राफ्ट, ठीक है, ऐसे हवा में कैसे फायर करेंगे. सो यू शुड नो व्हाट हेलीकॉप्टर्स, जैसे कि हमने देखा हेलिना इज माउंटेड ऑन विच, जस्ट नाउ वी रेड हेलिना वाज माउंटेड ऑन ALH, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने, यस दिस, ठीक है. So next is this Pralay missile. What is this Pralay missile? Indigenously developed, again it is an indigenously developed surface to surface missile, ठीक है. This thing also, देखिए एक होगी surface to surface, एक होगी surface to air, एक होगी air to air, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है what kind of missile it is. Indigenously developed surface to surface air missile with a range of 150 to 500 kilometers. You should know this thing, ठीक है. Alright, next is the submarines. 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वगीर वॉज डिलीवर्ड टू नेवी. ये क्वेश्चन आया है यूपी PCS के एग्जाम में, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी, ये क्वेश्चन आया था. तो वगीर वॉज डिलीवर्ड, सॉरी, ठीक है. सो इट इज बिल्ट अंडर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो कि इंडिजिनसली डिज़ाइन की जा रही है अंडर दिस प्रोजेक्ट 75. यू शुड नो व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट 75. प्रोजेक्ट 75 बेसिकली ये 6 सबमरीन को डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट है बाय मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अंडर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, ठीक है. तो हम वी आर कोलैबोरेटिंग विद दिस नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस एंड इंडियन दिस ऑर्गेनाइजेशन मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL. 5 और कौन सी सबमरीन है? दिस इज कालवारी, खांडेरी, करांज, वेला, वगशीर एंड वगीर. तो 3 केस हैं, यू कैन रिमेंबर दिस बाय दिस मेथड, एंड 3 वी से हैं, ठीक है. वेला, वगशीर, वगीर एंड कालावारी, खांडेरी एंड करांज, ठीक है. तो 3 ऐसे याद रख सकते हैं. एंड यू शुड नो दीज नेम्स एट लीस्ट बिकॉज दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर इंडियन सिक्योरिटी पर्पजेज, दैट इज वाई, एंड इट इज़ अ वेरी essential project also, this project 75. So it becomes important. All projects are not very important to be memorized itself, but this project 75 is very important. It is also evident from that PCS question कि अगर UP PCS में question आ रहा है that means it is something very important ना. If any exam is asking that must be important thing. That is तो कुछ जैसे ये टॉपिक हो गया, that becomes important आपके लिए, ठीक है. So classification of submarines, there are 3 types of mainly submarines. First is this SSBNs. What is this? It is a submersible ship ballistic nuclear. Then there is nuclear power attack submarines. Then there is diesel. अच्छा इसमें क्या होता है? ये it uses diesel as fuel and it need to come to surface again and again. तो ये चीज़ एक इसमें इशू रहता है, ठीक है. बाकी you should know this INS Arihant is India's SSBN, ठीक है. Alright, ये आपको पता होना चाहिए. Then this शिशुमर क्लास जो आपके पास है that is अंडर दिस डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन. इसके अलावा नेक्स्ट जो हम सबमरीन्स की बात करेंगे, दिस इज INS. व्हाट इज दिस INS विक्रांत? इट इज़ अ शिप बेसिकली, नॉट अ सबमरीन. रिसेंटली PM commissioned India's first indigenous aircraft INS विक्रांत. INS stands for Indian Naval Ship, ठीक है. ये इंडिजिनसली डेवलप्ड, दिस ब्यूटी इज इंडिजिनसली डेवलप्ड. देयर वाज मच न्यूज़ व्हेन दिस वाज डिलीवर्ड टू द नेवी, ठीक है. When this was actually commissioned, we say commissioned, not delivered. When it was commissioned by the Prime Minister, ठीक है. So INS Vikrant has been designed by Indian Navy's Directorate of Naval Design, and it has been built at Cochin Shipyard Limited,
ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। डोंट गेट कंफ्यूज दैट इट इज बिल्ट बाय सम ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इट इज बिल्ट एट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ठीक है। अच्छा, जनरली यूपीएससी जो मिनिस्ट्री कभी भी देता है एग्जाम में टेंड्स टू गिव रॉन्ग मिनिस्ट्री, ये आपको एक जनरल देखेंगे पीवाईक्यूज में ऑर्गेनाइजेशंस, मिनिस्ट्रीज, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, जनरली यूपीएससी गलत देता है, ठीक है, ऑलराइट। आप पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करेंगे देन यू विल गेट टू नो दिस थिंग। इससे पहले भी इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर थे, दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली, जैसे INS विराट, INS विक्रमादित्य, बट इट वॉज नॉट इंडिजिनसली डेवलप। ये इंडिया में ओवर 76% ऑफ मटीरियल जो है ऑन बोर्ड इज इंडिजिनस, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडिजिनस। नेक्स्ट इज दिस, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट 15B। हमने प्रोजेक्ट 75 देखा, इट इज रिलेटेड टू सबमरीन। प्रोजेक्ट 15B इज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट इज अ continuation of Kolkata class destroyers which were part of project 15A. Basically it is a more ship building का, ठीक है, मोरमुगांव एंड सूरत शिप ऑफ प्रोजेक्ट 15B वर रिसेंटली लॉन्च्ड। तो आपको पता होना चाहिए दीज शिप्स आर अंडर प्रोजेक्ट 15B एंड दैट सबमरीन्स 6 सबमरीन्स हुई थी, 3 के से थी, ठीक है, एंड 3 V से थी, वेला, वागीर, बख्शीर, ऑलराइट, करीन जी, यू शुड नो दैट नेम्स ऑल्सो। नेक्स्ट इज दिस प्रोजेक्ट, अच्छा ये 4 शिप्स इन 15B के अंदर कौन सी है, आर विज दीज, ठीक है, यू शुड नो दीज आर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। उसके बाद आता प्रोजेक्ट 17 है, तारागारी एंड उदयगिरी शिप, ये आपको पता होना चाहिए, दीज आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, एंड दीज आर ऑल्सो 75% इसमें भी इंडिजिनस मटीरियल यूज्ड है, ठीक है, अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इट इज़ बिन डिजाइंड इन हाउस बाय इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन देर इज प्रोजेक्ट 75I, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 6 सबमरीन्स हमें बनानी थी, दैट इट कम्स अंडर दैट थिंग, 6 एडवांस सबमरीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देन देर इज इंडियन नेवल शिप INS Wakshir, what is this? It is the 6th and last submarine of project 75 already discussed, ठीक है, it is a diesel attack submarine, ठीक है, and P75 we have done this and these also we have done, we know this Mazagon Dock Limited is associated with this project 75 and one more collaboration with French naval company, there was a French naval company which we are collaborating for the technology. Then comes some aircrafts, drones and helicopters. This Dornier aircraft flight was also much in news. This was not related to Ministry of Defense, it was related to Ministry of Civil Aviation, ठीक है, which launched the first commercial flight of made in India Dornier 228 commercial flight है Dornier। ये डेवलप किया गया HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग एंड इट इज अंडर प्रोग्राम ऑफ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान, जो प्रोग्राम है इंडिया का, ठीक है, इट इज अंडर दैट थिंग, दैट प्रोग्राम उड़ान। व्हाट डज दिस एम टू प्रोवाइड रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, यू शुड नो दिस, व्हाट इज दिस उड़ान स्कीम, इट इज रिलेटेड टू रीजनल कनेक्टिविटी, ठीक है, फोकसिंग ऑन एयर ट्रैवल। देन देयर इज लाइट कॉम्बैक्ट helicopter, it is also indigenously developed by HAL, again HAL, ठीक है, India has become 7th country to make attack helicopters और इसकी रेंज कितनी है 550 किलोमीटर, एंड्योरेंस ऑफ 3 hours, 3 hours, सर्विस कॉलिंग, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एल्टीट्यूड टू विच कॉलिंग, जिसको सर्विस कॉलिंग को बोल, क्या होता है सर्विस कॉलिंग, इट इज ए मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, एल्टीट्यूड टू विच इट कैन फ्लाई, लगभग 6.5 किलोमीटर की, ठीक है। It is the only combat helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters, ठीक है, it can land and take off at an altitude of 5,000 kilometers, sorry 5,000 meters, ठीक है, kilometer would you would reach in space actually, so sorry for that, it is 5,000 meters, ठीक है, and why it becomes important, because it is the only combat helicopter in the world which can do this, ठीक है। Next, indigenous stealth drone. Again, see, because we are focusing on make in India in defense technology, so that is why these programs become important. It is also referred, this indigenous stealth drone is also referred to as unmanned combat airborne vehicle, and it has made its maiden flight. It is precursor to the Ghatak
armed stealth drone program which is also called AURA, Autonomous Unmanned Research Aircraft. ठीक है, this is defined as self defending high speed reconnaissance UAV with a weapon firing capability. ठीक है, UAV क्या होता है? Unmanned Airborne Vehicles. ठीक है, then it is designed and developed by Aeronautical Development Establishment. You should know the organization, which organization has developed or designed that. You should know other things like range and other features important which I am telling you. Then this is Chinook helicopter. It is not India's, it is of US. ठीक है, you should know this thing at least. Mostly match the following में question आएगा, Chinook is related to US. You should know this thing बस. ठीक है, it was used for humanitarian disaster relief operation भी, और Indian Air Force ने इसको इंडक्ट किया था, इस वजह से ये न्यूज़ में है. इट इज़ नॉट न्यूज़ बिकॉज यूएस यूजेस दिस, इट इज़ यूज बिकॉज इट वॉज इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स. यूएस क्या है? यूएस ने डिज़ाइन डेवलप, मतलब बेसिकली यूएस का हेलीकॉप्टर है दैट इज इंडक्टेड इनटू. तो आपको ये पता होना चाहिए चिनूक कहाँ से आया, यूएस से आया. ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स, आर्टिलरी इक्विपमेंट एंड फ्यूल डिफिकल्ट टेरेंस पे. देख सकते हैं, आपके डिज़ाइन देख सकते हैं. इट मस्ट बी, इट कैन, मतलब ऐसे डिज़ाइन है फॉर व्हाट पर्पसेस? इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस, ऑलराइट, फॉर हेवी लिफ्टिंग. देन देयर इज तेजस मार्क 2. ठीक है, इट इज़ अ सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली एजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट. ठीक है, आपको इमेजेस से क्लियर हो जाएगा. इमेजेस का हेल्प लिया करिए पढ़ने के टाइम, यू वुड गेट मोर क्लैरिटी. ऑलराइट, ठीक है, यू वुड हैव सीन in that Tom Cruise movie, he is using some jet like this. अगर ऐसा जेट यूज़ कर रहा है फॉर फाइटिंग पर्पजेज, इट मस्ट बी लाइट वेट. तो बस लाइट वेट वहाँ से आ गया. इट इज़ सिंगल इंजन टू रिड्यूस, ऑब्वियसली अगर डबल इंजन ट्रिपल इंजन वेट वुड इंक्रीज, बट इफ वी कुड प्रोवाइड अ सिंगल इंजन ऑफ दैट एफिशिएंसी दैट वुड बिकम मच मोर एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाएगा. हाईली एजिलिटी, यू वुड हैव सीन टॉम क्रूज लिफ्टिंग द एयरक्राफ्ट इज दिस जेट, नॉट जस्ट एग्जैक्टली ये जेट नहीं था बट समथिंग लाइक दैट ना. आप कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम पॉप कल्चर, यू कुड टेक रेफरेंस फ्रॉम मूवीज, बुक्स, वट एवर यू हैव रेड टू बेटर अंडरस्टैंड थिंग्स. आपने ये देखा, यू हैव एंड यू डो नॉट नो मच अबाउट दिस थिंग, बट यू नो समथिंग लाइक दिस वॉज ऑल्सो यूज बाई टॉम क्रूज इन दैट मूवी. तो आप देख सकते हैं यार वो लाइट वेट होगा ना यार, वो बहुत एजाइल होगा, है ना, और बहुत सारे काम कर सकेगा. जस्ट लाइक दिस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है. तो you can make connections and you will, that thing will remember much for much more time in your memory. ठीक है, तो Tejas Mark II is related to this, you should know this, and it is described as a 4.5 generation machine which will have 70% indigenization. ठीक है, तो indigenization होगा and it will be fitted with more powerful G. basically ये अभी जो है क्लियर कर दिया गया है Tejas Mark II का प्रोजेक्ट, that is why we are reading this thing. ठीक है, then there is kamikaze drones, next topic. ये लद्दाख में इंडक्ट किया गया था, आर्मी ने इसको इंडक्ट किया था बेसिकली विद इन. तो ये क्या है? स्मॉल अनमैन्ड एयरक्राफ्ट दैट आर पैक्ड विद एक्सप्लोजिव्स दैट कैन बी फ्लोन डायरेक्टली एट अ टैंक और अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स दैट आर डिस्ट्रॉयड व्हेन इट हिट्स द टारगेट एंड एक्सप्लोड्स. ठीक है, ये जाएंगे, हिट करेंगे टारगेट को, एक्सप्लोड करेंगे और दुश्मन के जो एनिमी के टारगेट ट्रूप्स टैंक्स होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है, it is also called switch blade drones as their blade like wings spring out on large. You can see from this image. Then there is Hermes Starliner unmanned system. ठीक है, what is this? It is related this, देख रहे हैं, ये बेसिकली सिविलियन यूज में इजराइल ने ड्रोन अलाउ किया था. तो यू शुड नो दिस. Hermes, what is this Hermes? It is a drone basically. ठीक है, and it was given permission for civilian air space. ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा, it will allow Israel, first of all this Israel became first country to allow drones in civilian air space. You should know this thing only. Dirty bomb क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, डर्टी बम. डर्टी बम होता है कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज़ करके क्रिएट किया गया बॉम्ब कहलाता है डर्टी बॉम्ब. ठीक है, व्हाई इज इट कॉल्ड डर्टी बॉम्ब? बिकॉज इट यूजेस रेडियो एक्टिव मटीरियल and that is not of the bomb category. जो आप you would have seen the radioactivity वाला material नहीं use होता है. It is basically radioactive material from hospitals, from nuclear power stations or research laboratories. That kind of radioactive material used, but that is also very much dangerous when it is together with
conventional bomb, and it spreads and like and it could create havoc in the targeted area. It is very cheaper, so it could be easily manufactured, and it is also very quicker to make rather than nuclear. It is very expensive, and it is also, it takes time. And but these dirty bombs which are equipped with conventional bombs, radioactive materials are equipped onto the conventional bombs. ठीक है, तो आपको ये बस पता होना चाहिए what are dirty bombs. Then there is indigenous defense equipment handed to Indian Army. तो कुछ weapons hand किए गए थे Indian Army को. You should know what are these. This is future infantry soldier as a system. So that these soldiers would be equipped basically modern assault rifle, helmet, bulletproof. Then what is this Nipun? तो आपको बस पता होना चाहिए. It is something related to indigenization of Indian Army. ठीक है, defense equipments की. It is also known as soft target blast munition, and it replaces the vintage NMM 14 mines. You should know, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए एंटी पर्सनल माइन निपुण क्या है. Then landing craft assault was also handed over. Then there is Carl Gustaf M4. Sweden has announced plans to manufacture this thing. ठीक है, weapon system in India. ऐसा नहीं है कि स्वीडन ने अनाउंस किया तो, because it is to be manufactured in India, that is why it is in news. ठीक है, आर्मी हैज़ बीन यूजिंग दिस कार्ल गुस्ताफ सिंस 1976 और नाउ इट वुड बी मैन्युफैक्चर्ड दिस. ये भी मैन पोर्टेबल मल्टी रोल वेपन सिस्टम है. यू कुड सी फ्रॉम दिस, जैसे हमने ऊपर देखा ना मैन पैड्स, उसी तरीके से दिस इज ऑल्सो. देन देर इज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर. यू कैन सी दिस, यू मस्ट हैव सीन दिस ऑन रिपब्लिक डे परेड्स. ठीक है, आर्मेनिया हैज़ प्लेस द फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर इंडियाज पिनाका MBRL. ठीक है, तो ये क्या सिस्टम है? इट इज़ एन इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाई दिस ARDO और DRDO. ठीक है, जो ARD और DRDO, दिस आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने डेवलप किया रॉकेट सिस्टम विच आर्मेनिया हैज़ टू परचेज. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म. दिस स्पेस, व्हाट इज दिस स्पेस? Submersible platform for acoustic characterization and evaluation. It is state-of-the-art testing and evaluation facility launched by DRDO for sonar systems developed by for the use of Indian Navy. तो स्पेस दिस, ये देख सकते हैं आप, दिस थिंग बेसिकली सोनार कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए DRDO ने डेवलप किया है. देन देर इज अभ्यास. अभ्यास क्या है? अभ्यास हीट हमने ऊपर देखा था. व्हाट इज हीट? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. Abhyas was successfully flight tested from the integrated test range. You must have also seen these images in news from the Chandipur off the coast of Odisha. अब पूछ सकता है चांदीपुर कहाँ है? You should know it is in Odisha. ठीक है. Next thing is it consists of twin underslung boosters which provide the initial acceleration. You don't need to go into that detail. Basically, it is an indigenous unmanned aerial target system to meet the requirement of armed forces and eliminate airborne thrust. ठीक है, और आपको पता है किसने डिज़ाइन की? हमने पहले डिस्कस किया. ये इट इज़ डिज़ाइन बाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARDE ऑफ DRDO. ठीक है, ये पता होना चाहिए. देन देर इज हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम. व्हाट इज दिस? हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम. SFO technology partners with DRDO's chess lab to develop HELS. This HELS. ठीक है, ये क्या करते हैं? These emit enough thermal energy to directly render a target ineffective without using a conventional munition. मतलब ये इतनी thermal energy, what is this? Some problem with this. ठीक है, these weapons emit thermal energy directly under a target, मतलब without hitting that target. With the use of thermal energy they can make that target ineffective. ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए. HELS is a laser weapon belonging to directed energy weapon category. Then you should know what is this directed energy weapon. ठीक है, it basically covers all those technologies that produces a beam of concentrated electromagnetic energy or atom or subatomic particles. ठीक है, directed energy मतलब कि हम किसी टारगेट पे एनर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं rather than hitting that target physically or kinetically, something like that. We are hitting it through energy, directed energy weapons, इसीलिए इनको बोलते हैं DEW. समझ गए? तो कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, UK, इजराइल एक्सेट्रा हैव प्रोग्राम्स टू डेवलप DEWs. ठीक है, तो इस वजह से DRDO इज ऑल्सो डेवलपिंग दिस. ऑलराइट,
Then there are butterflies mines. What is this? Russia is accused of using this PFM1 known as butterfly mines, जो कि मतलब it looks like toys. You can see this from this image. It looks like an butterfly and also like a toy, and therefore dangerous for children हो जाती है, ठीक है. As it is बेसिकली एंटी पर्सनल लैंड माइन्स होती हैं कि एज यू वुड स्टेप ऑन टू दैट वुड ब्लास्ट, ठीक है. तो दीज माइन्स कैन बी डिप्लॉयड बाई बीइंग ड्रॉप फ्रॉम हेलीकॉप्टर्स और थ्रू बैलिस्टिक. सिंस दीज लुक लाइक टॉयज इट कुड गेट इन टू चिल्ड्रंस एंड दैट वुड कॉज fertility or death of unfortunate. But so Russia has been accused of using these PFM1 butterfly mines, ठीक है. And mines are banned by International Convention on Landmines, but Russia and Ukraine are not signatory to it, so they have been using this. All right, we have done this defense part of science and technology 1. Let's go into this PT updated part 1. What is this military application of drones? अच्छा, UPSC has already asked question on drones, ठीक है. Actually application of drones. अब कभी भी किसी भी चीज़ पे application पूछे ना, I have already told you आंसर उसका होगा D, ठीक है. आंसर उसका होगा D. I have already told you this in earlier lecture. But you should remember this thing कि एप्लीकेशन किसी भी चीज़ के, एडवांटेज किसी भी चीज़ के, इट कैन बी इनफाइनाइट. एनी टेक्नोलॉजी एक्चुअली, एनी टेक्नोलॉजीज एडवांटेजेस कुड बी इनफाइनाइट, ठीक है. फॉर इंस्टेंस AI के एडवांटेजेस UPSC आज in I think 2020 they asked AI could be used to write and sing songs. People argued how could AI write and sing songs, ठीक है. But I am telling you their advantages, futuristic technologies advantages could be infinite. And now you are seeing, अभी आप देख रहे होंगे Instagram पे, YouTube पे, ठीक है, कि AI is writing songs, is singing songs, also singing songs in specific singer voices. You must have heard कि आतिफ असलम सॉन्ग, सोनू निगम सॉन्ग्स, मतलब उनकी वॉइस में दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ सम अदर सिंगर थ्रू AI. मतलब दीज सिंगर्स आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स बट देयर वॉइस इज बीइंग यूज्ड टू सिंग दैट सॉन्ग्स एंड पब्लिक वुड थिंक, यू वुड थिंक और आई वुड थिंक कि दीज आर सिंग बाई एक्चुअल सिंगर्स बट दो सॉन्ग्स आर संग बाई AI. तो मैं कहने का मतलब ये है कि AI के जो एप्लीकेशन है या कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इट कुड बी इनफाइनाइट, ठीक है. तो आपको इस पर्सपेक्टिव के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे किसी भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की. इफ दे आस्क यू एप्लीकेशन ऑफ 5G, इफ दे आस्क यू एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन, तो यू शुड नो दैट एप्लीकेशंस कुड गो लाइक इनफाइनाइट. सो यू शुड बी ब्रॉड माइंडेड, यू शुड हैव अ वेरी मैक्रो व्यू, ठीक है, कि सब कुछ इट कैन इनकम्पास मल्टीपल थिंग्स, ठीक है. चलिए वापस से टॉपिक पे आते हैं. ड्रोन की एप्लीकेशन क्या है? एरियल फोटोग्राफी, यू मस्ट हैव सीन इन वेडिंग्स. शिपिंग एंड डिलीवरी, जस्ट नाउ वी हैव दैट इजराइल वाला वी हैव सेड सिविलियन यूज में, एंड यू मस्ट हैव सीन साउदीज ड्रोन हैड डिलीवर्ड पैकेट, देयर वाज अ वीडियो वायरल ऑन दैट ऑल्सो. देन जियोग्राफिक मैपिंग, वी हैव बीन डूइंग दिस एंड इट इज द very basic fundamental principle of or application of drone. डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ होता है टू ट्रैक टू कहाँ पे क्या डिज़ास्टर आया है या कि कोई मिसिंग है या कोई ट्रूप्स मिसिंग है, कोई इक्विपमेंट, तो दैट पर्पज़ में यूज़ होता है. देन प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, सर्च एंड रेस्क्यू, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट. इन डिज़ास्टर वेदर फोरकास्ट में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में टू सी वेयर द एनिमल इज, वेयर द टाइगर्स आर, वेयर द चीताज आर, ठीक है, वेयर द एशियाटिक लायन, तो उस केस में भी. देन लॉ इन्फोर्समेंट में कि यू मस्ट हैव सीन ड्यूरिंग कोविड कि पीपल वर एडवाइज टू स्टे इन होम बट सम पीपल वेंट आउट, तो यू मस्ट हैव सीन पुलिस यूजिंग ड्रोन्स टू चेक इफ देयर इज एनी गैदरिंग, ठीक है. तो लॉ इन्फोर्समेंट बेसिकली एंड अदर पर्पज ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन पुलिस फ्रीक्वेंटली यूजिंग. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल बट यू मस्ट हैव सीन इन डेली लाइफ पुलिस यूजिंग ड्रोन्स, ठीक है. एंटरटेनमेंट पर्पज, ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन वीडियोज ऑन सोशल मीडिया where for entertainment purposes drone is being used, ठीक है. तो military application भी Indian Air Force Indian armed forces have floated the idea of integrating here. Indian armed forces have floated the idea for integrating unmanned aerial vehicles or drones in its combat system. Very obvious thing.
ठीक है. तो you should know something, this what are these swarm drones, these are used in combat operations. Then switch VTOL indigenous drones कुछ you should know that DRDO का लक्ष्य, DRDO का निशांत, then Tapas UAV, should know these names at least. ठीक है. If UPSC asks लक्ष्य, निशांत, तपस are terms associated with which of the following? पहला ऑप्शन होगा ग्रीन फायर क्रैकर्स. ठीक है. सेकंड ऑप्शन होगा पेस्टिसाइड्स. थर्ड ऑप्शन होगा न्यूली डेवलप्ड राइस. फोर्थ ऑप्शन होगा ड्रोन्स. तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? ड्रोन्स. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट ड्रोन्स दैट imported in India is Israel Searcher and Heron UAVs. We have already discussed this, Heron. Then there is Predator armed drones or Sea Guardian drones, MQ-9B Sea Guardian. India and US are moving closer to sign these, मतलब sign deal for these two drones. ठीक है. These two drones and these are for Israel. Heron and Searcher are from Israel. Then there is naval defense system against drones. कि मतलब हम तो drones use कर रहे हैं, but if some nefarious activities or terrorist groups use drones against us, so how would we protect ourselves? तो उस केस में डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट ड्रोन क्या है हमारे पास? नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम है. This is also an indigenously developed comprehensive anti-drone system which is developed by DRDO. ठीक है. It has capabilities for both hard kill and soft kill. Hard kill क्या होता है? Directly hitting the drone components. ठीक है, उसको मार गिराना. एंड सॉफ्ट किल क्या है? उसके हमने GPS कोऑर्डिनेट्स बदल दिए ड्रोन के. इट वुड गेट मिसगाइडेड एंड वुड गो समवेयर एल्स. ठीक है. और वी जैम दी सिग्नल्स कि हमने वहाँ पर जैमर एक्टिवेट कर दिया, दैट द सिग्नल्स ऑफ द ड्रोन वुड गेट लॉस्ट एंड इट वुड जस्ट ड्रॉप डाउन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो दो तरह के किल होते हैं, सॉफ्ट किल एंड हार्ड किल. यू शुड नो दिस. देन देयर इज DRDO's D4 ड्रोन सिस्टम. This was acquired by 3 forces and it can also detect, identify, neutralize. Then there is Indrajal. It is again an indigenous autonomous defense drone defense system, basically drone. ठीक है. तो you should know this. Then there is Israel's Smash 2000 plus system. It is again a defense system against drones. There are some regulations regarding drone. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, some technology comes. ठीक है. If some new futuristic technology comes into place, then government would bring into some regulation, some scheme, some program. ठीक है. Some guidelines, some rules to control, to basically regulate that, so that misuse could be avoided of such new emerging technologies. तो इसलिए ड्रोन रूल्स 2021 आए, that were guidelines by DGCA. It comes under Ministry of Civil Aviation. You should know this. It is not under Ministry of Defense. It does not. If you are reading something related to defense, does not means everything would be Ministry of Defense. ठीक है. Government is very much interconnected. ठीक है. There is coordination among different ministries. Even for one single domain, there is coordination among multiple ministries. You should know this thing. So guidelines by DGCA. तो कुछ उसमें restrictions हैं, जैसे रेड जोन है उसके अंदर. Then there is registration and licensing required. All right. So these are some things, are some important points under Ministry of Drone Rules 2021. Then there is Digital Sky Platform. इसमें basically you could take permission for flying of drones, and it is also hosted by DGCA. You should know this. Then there is National Counter Rogue Drone Guidelines. Other than this, there are regulation on drone market also कि import नहीं कर सकते. Government has banned the import of drones except for research and development and defense and security, because using drone sensitive data could be collected, and if they are imported, they would be using imported chipsets which could be misused. That data could be misused by some countries which wants anti-India purpose activities, that do anti-India activities. Those countries could misuse that data from drone capture. ठीक है. तो इस वजह से there has been banned, India government has banned the imports of drone except for research and development and security purposes. That are very much highly monitored things. That is why it is allowed in that. इसके अलावा responsible use of intelligence military, you should know this. RAIM, what is this? It is basically a international summit. ठीक है. World's first international summit on responsible use of artificial intelligence in military. ठीक है. ये कहाँ हुई थी? हेग, नीदरलैंड्स में हुई थी. Just know this thing. Good. बाकी तो you would know by yourself. Then what is this LORA? It is long range artillery weapon system. It was recently BEL जो है आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, also responsible for EVMs. ठीक है. BEL. ठीक है. It has signed an MOU with Israel's aerospace industry for domestic manufacture and supply of this weapon system.
ठीक है। अब ये है क्या वेपन सिस्टम? इट इज़ अ शॉर्ट रेंज रोड मोबाइल ग्राउंड एंड सी लॉन्च सॉलिड फ्यूल्ड बैलिस्टिक मिसाइल विच हैज़ बीन डेवलप्ड एंड ऑपरेटेड बाय इजराइल। ठीक है, तो एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि शॉर्ट रेंज है एंड इट इज़ ग्राउंड एंड सी लॉन्च सॉलिड फ्यूल्ड। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए बस। देन देर इज इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम EMMS एंड द समर पोर्टल। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो EMMS बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स डिजिटल एंटरप्राइज असेट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन वर्ल्ड। ठीक है, नॉट मच टू दैट, बट अरे ये इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रैक द स्टेटस ऑफ मेंटेनेंस टास्क एंड शेड्यूल इक्विपमेंट रिपेयर्स। मतलब कहाँ पे हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो वो बेसिकली नाम से क्लियर है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम EMMS। देन व्हाट इज द समर? इट इज़ अ समर क्या है? इट इज़ अ पोर्टल ऑफ DRDO's एरोनॉटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, it basically sets a benchmark to measure the competency of defense manufacturing enterprises. One SAMR is also related to, you should know this, SAMR is related to benchmark to measure the competency of defense manufacturing enterprise. ठीक है, this thing you should know, this thing that is sufficient. Then there is sprint scheme. sprint ये it stands for supporting pole vaulting in research and development through innovation for defense excellence and other things. ठीक है, it basically ये indigenous technology develop करना चाहते हैं through this scheme. ठीक है, alright, mostly for naval purposes, naval innovation, navy के लिए indigenous technology develop करना, it is under this sprint scheme. Then what is this Kavach? It is a national level hackathon, ठीक है, to identify innovative ideas and technological solutions for cyber security. तो Kavach is related to cyber security. It is a hackathon at national level. ठीक है, you should know this कि नए नए innovative ideas come to fore and we could develop more around that thing. Then there is Sainya Ranakshetram hackathon. Again an hackathon. It is organized by Indian Army. Kavach is organized by AICTE. This AICTE. सान्या रणक्षेत्रम इज ऑर्गेनाइज बाय आर्मी। ठीक है, आर्मी। ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव सेम है, साइबर चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशन ढूंढना एंड टू रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड अनदर PT 365 बेसिकली अपडेटेड का डिफेंस पार्ट, वी हैव अगेन कंप्लीटेड दैट थिंग। अब जल्दी से चलते हैं डिफेंस ऑफ PT 365 अपडेटेड पार्ट 2। we'll cover this, then we'll try to cover more topics, जो भी left over part portion बचा है ना, we'll try to cover that thing and we'll try to cover most of the things today. Let's see how much is left. alternate energy रह रहा है, then awards and prizes and miscellaneous we have around, it would become difficult to cover in this lecture itself. Let's see, let's hope. We'll see what to do. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, लेट इट पास इन द राज्यसभा, देन वील सी। चलो फिलहाल देख लेते हैं बिल पास लोकसभा में, इट हैज़ पास, इंट्रोड्यूस हुआ था बेसिकली लोकसभा में। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस। इट सीक्स टू एम्पावर कमांडर इन चीफ in respect of service personnel who are serving under his command for the maintenance discipline, proper discharge of their duties. Basically discipline related matters के लिए है, तो it is very much obvious from this name itself and you could go through it. Alright, so it is not very much relevant for that, you could skip this. Next is this proposed joint theatre commands. 2021 में कौन कौन से joint theatre commands है? Joint theatre commands में there is mixing of कमांड्स। ठीक है, आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी। सो देर इज एयर डिफेंस कमांड, देन देर इज इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड, देर इज इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड, मैरीटाइम थिएटर कमांड। तो यू शुड नो दिस 4 कमांड्स नेम्स एटलीस्ट यू शुड नो। देन देर इज सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि सेल्फ रिलायंस हमने डिफेंस में हमने जो बात की थी कि मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर सम मोर डील्स हैव बीन साइंड। ठीक है, more push has been given, so we will see some more developments what have been taken place meanwhile. तो improved Akash weapon system, ये क्या है? It is a Akash weapon system is a short range surface to air missile, you can see this. ठीक है,
शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल सिस्टम दैट कैन साइमल्टेनियसली एंगेज मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है, ये 360 डिग्री एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इसकी है, यू शुड नो दिस थिंग. नेक्स्ट इज वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति प्लेन्स. दिस it is indigenously developed WLR. WLR stands for weapon locating radars, which is capable of locating guns, mortars and rockets firing on troops. ठीक है. नेक्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स, राइट, ठीक है, ये एंटी पायरेसी एंटी ट्रैफिकिंग के लिए. देन लिंक्स U2 सिस्टम फायर कंट्रोल सिस्टम, इट इज़ कैपेबल ऑफ एक्यूरेटली ट्रैकिंग एंड एंगेजिंग टारगेट्स, ठीक है. Then there is next generation maritime, again something similar to BrahMos. We have already done this actually, BrahMos. Then there is defense acquisition policy. Under this defense acquisition policy, actually Union Cabinet has signed a contract. ठीक है. तो इसमें क्या है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में कि बाय व्हाट, लेट्स सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस एक्चुअली, वही देखते हैं हम, एंड लेट्स स्किप द अनइम्पोर्टेंट थिंग्स. एक्चुअली यू कैन स्किप दिस होल थिंग, यू शुड जस्ट नो दिस डिफेंस एक्विजिशन, इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस. नेक्स्ट इज द सिपरी रिपोर्ट हर साल आती है. ये बेसिकली ग्लोबल आर्म ट्रांसफ़र की बात करती है कि कौन सा मोस्ट स्पेंड करता है, कौन सा मोस्ट एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री इक्विपमेंट्स या आर्म इक्विपमेंट्स. तो US वॉज द वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर इन पास्ट 5 years, फॉलोड बाय रशिया एंड फ्रांस. तो यू शुड नो दीज रैंकिंग, US, रशिया, देन फ्रांस. एंड इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट वॉज हाइएस्ट इन पास्ट 5 years. ठीक है, एक्सपोर्ट कौन करता है, US, देन रशिया, देन फ्रांस, और इम्पोर्ट में इंडियाज शेयर वॉज हाईएस्ट इन पास्ट 5 years. नेक्स्ट इज सऊदी अरेबिया, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया. यू शुड नो इंडिया की रैंक, ठीक है. रशिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसका शेयर कम हो गया रशिया का, ठीक है. अदर टॉप सप्लायर्स इंडिया को हैं आर्म के, फ्रांस, US एंड इसराइल, ठीक है. इंडियाज आर्म्स इम्पोर्ट फेल 11% बिटवीन these years, ऑलराइट, बिकॉज रीजन्स लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, efforts to diversify arm suppliers. Alright, first we were just dependent on Russia. Now we are also procuring more from France, US and Israel also. ठीक है. Then we are also replacing imports from local design. That is also import has fallen a bit, 11%. We can see this. Then 5 biggest spenders in 2022 were US, China, Russia, India and Saudi Arabia. Alright. Overall spending किसने सबसे ज़्यादा की? US, China, Russia, India, Saudi. Import सबसे ज़्यादा किसका है? India, Saudi, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. पर्सनल एक्सपेंसेस रिमेन्ड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी इन इंडियन मिलिट्री बजट. जो इंडिया का पर्सनल बजट है, दैट पर्सनल एक्सपेंसेस दैट बिकम्स द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर कैटेगरी अंडर मिलिट्री, ठीक है. सिपरी इज ब्रॉड बाय अ स्वीडन बेस्ड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, यू शुड नो दिस, ठीक है. नॉट ब्रॉड बाय एनी गवर्नमेंट बट बाय अ इंडिपेंडेंट एजेंसी विच इज स्वीडन बेस्ड, ठीक है. तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स के बारे में जो है, इट इज़ प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है. दिस इज इंडियन आर्मी इज गोइंग टू प्रिसीजन अटैक लॉइटरिंग म्यूनिशन, पाम 400 उसको बोलते हैं. इंडियन आर्मी इज गोइंग टू कंडक्ट पाम 400 ड्रोन टेस्ट इन पोखरण, ठीक है. तो ये ड्रोन टेस्ट होंगे, तो यू शुड नो व्हाट इज दिस थिंग. इट इज़ बेसिकली एन आर्म्ड रिमोटेडली पायलटेड व्हीकल बिल्ट बाई एविजन सिस्टम्स, ठीक है. एंड इसकी स्पीड क्या, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हाई प्रिसीजन लॉइटरिंग सिस्टम, और इसकी स्पीड कितनी है, लगभग दिस मच 90 to 260 km/h, विच कैन फ्लाई एट एन हाइट ऑफ 3000 to 4000 feet, एंड इट पिक्स आउट इट्स टारगेट एंड फायर्स एन आर्मर पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप, ठीक है. दिस ड्रोन वुड गो ऑन टॉप टिल दीज हाइट्स एंड फायर टू इट्स टारगेट. देन सुखोई 30 Mark 1 फाइटर एयरक्राफ्ट, अगेन इट इज़ अ फाइटर एयरक्राफ्ट, ठीक है, जस्ट लाइक तेजस Mark 1 वी सॉ, ठीक है. इट इज़ अ मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप बाई सुखोई डिज़ाइन. वेयर इज द सुखोई, रशियन है, ठीक है. एंड HAL, ठीक है. पार्टनरशिप में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, HAL, ठीक है. देन इट इज़ अ एयर टू सरफेस मिसाइल, यू कैन सी इट इज़ ऑब्वियसली एयर टू सरफेस मिसाइल. अदर एयर टू सरफेस मिसाइल्स आर निर्भय, ब्राह्मोस, वी हैव सीन, ठीक है. इट इज़ फिटेड विद तरंग रेडार वार्निंग
रिसीवर। इसके अलावा MQ-9 रीपर, ये US क्लेम दैट रशिया जेट्स ड्राउंड इट्स MQ-9 रीपर ड्रोन, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ ऑफ US एंड इट वाज यूज्ड, US said that Russia basically drowned it in this drone in Black Sea, ठीक है, you should just know this. Then Pralay ballistic missile we have done, Harpoon missiles we have done, ठीक है, MK-54 lightweight torpedo, it is India is going to sign a weapon deal with US, ठीक है, ये कहाँ से आएगी, US से आएगी, और you can see that it can operate in shallow waters, you are seeing this shallow water में यूज़ हो सकती है। सी इमेजेस वुड गिव यू मच मोर क्लियरर आइडिया, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। एंड इट इज़ पावर्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग्स, ठीक है, आर्मी टू रेज CCOSW फॉर हैंडलिंग साइबर स्पेस चैलेंजेस एंड इट विल असिस्ट सॉरी it will assist its formation in taking up cyberspace security challenges, ठीक है, obviously it is reducible by its name only, so it would assist army for security challenges, ठीक है, in taking up the cyberspace security challenges. Then what is this Vayu Link? तो recently Indian Air Force inducted an in-house system to identify friendly forces in combat by name Vayu Link, ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स, वायु है तो ऑब्वियसली इट वाज रिलेटेड टू इंडियन एयरफोर्स एंड वायु लिंक है क्या, इट इज़ इफेक्टिवली अ डेटा लिंक सिस्टम विच कनेक्ट्स ऑल एंटिटीज कॉम्बैट एंड नॉन कॉम्बैट थ्रू अ सिंगल लिंक, ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग ओनली। देन देर इज INS Androth, it is an anti-submarine craft, INS Androth, which was recently launched. It is second in series of 8 anti-submarine warfare shallow water craft. पहला फर्स्ट, अगर ये सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट वाज दिस INS Arnala, ठीक है, यू शुड नो दिस, यू शुड नो दीज नेम्स एंड व्हाट आर दीज, मैच द फॉलोइंग में आएगा तो यू कुड easily eliminate, at least if you know one or two you could eliminate or you could get to the answer easily. Then there is Indian Defence Space Symposium, India Def Symposium, Space Symposium, IDSSS. It was organized by ISPA. We had read about ISPA in last lecture. If you have not done that, go through that. ठीक है, तो ISPA we have done, ठीक है, in association with DRDO, ठीक है, इसमें क्या है, ISPA we have done, we are not covering back again, ठीक है, this was organized by ISPA in collaboration with DRDO. So we are done with defense portion and let's now cover at least some more topics, ठीक है. So we have these topics remaining: alternative energy, awards, prizes, miscellaneous sum, ठीक है. तो ऐसा करते हैं, पहले देखते हैं बाकी में कितना रह रहा है. Will not make this lecture, I could complete this in this lecture itself, but that would become tiring for you. That is why I am trying to take it in short, ठीक है. We have done this much actually. इसका miscellaneous remaining. Okay, so I think we should cover this awards and prizes वाला portion कर लेते हैं, and next lecture में हम लोग कर लेंगे alternative energy and this miscellaneous portion and will be done, ठीक है. तो इस portion में हम कर लेते हैं awards prizes इसका, and then we do, इसमें तो awards prizes कुछ है नहीं, तो nothing to cover in this. And then we have updated part 1 में, is there something related to awards and prizes? No, again no, ठीक है. तो we'll do this awards and prizes इसका, and ठीक है, alright. तो लेट्स गो इनटू दिस सेक्शन. तो 2022 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला था? इट वाज गिवन फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द नेम्स, बट यू शुड मोर फॉर यूपीएससी पर्सपेक्टिव. यूपीएससी क्या पूछती है? इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन नेम्स एट ऑल, किसी भी फील्ड में. इट इज़ इंटरेस्टेड इन द टेक्नोलॉजी, इन द डेवलपमेंट, ठीक है, वो सब चीज़ों में यूपीएससी इज़ मोर इंटरेस्टेड. तो यूपीएससी वुड आस्क यू क्वेश्चन अराउंड क्लिक केमिस्ट्री, यूपीएससी वुड आस्क क्वेश्चन अराउंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है. Just as
यूपीएससी डिड नॉट आस्क व्हाट इन 2021 के मेंस में यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चन अराउंड ब्लू एलईडीज, समथिंग अराउंड दैट। तो उसने मेंस में क्वेश्चन पूछा, दे गेव द नेम ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स कि 2011 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, 2014 में शायद, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज मिला था। दे गेव दैट नेम इटसेल्फ, बट दे आर द एप्लीकेशन, द एडवांटेजेस ऑफ दैट ब्लू एलईडीज। तो इसी तरीके से यूपीएससी इज लेस इंटरेस्टेड इन नेम्स बट इज मोर इंटरेस्टेड इन आस्किंग दी कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इट वॉज द सेकेंड नोबेल प्राइज फॉर कैरी के बैरी शार्पलेस, जिनको मिला था। फर्स्ट नाम देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि इग्नोर नहीं करते हैं। इन केस यूपीएससी आस्क, you should know this. Anyways, it would be good for you to know the names as well. तो Caroline R. Bertozzi of USA, Morten Meldal of Denmark, and K. Barry Sharpless of USA. These three people got the Nobel Prize for chemistry, and it was the second Nobel Prize for this man, ठीक है, K. Barry Sharpless, who won his first prize in 2001 for Shirley catalyzed oxidation reactions. And he is the fifth person to receive Nobel Prize twice. इससे पहले किसको किसको मिला? These are important facts. किसको किसको दोबारा मिला? Multiple quiz. Even if UPSC is not asking, many quizzes also or many exams ask this कि किसको किसको दो बार मिला. That thing becomes interesting because, ठीक है, because that thing become interesting तो इसलिए पूछा जाता है। दो बार नोबेल प्राइज किसको मिला है? मिला है मैडम क्यूरी को, लाइनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सैंगर। ऑलराइट, तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस हैज़ ऑल्सो वॉन इट 3 times, वाइल UNHCR, द UN रेफ्यूजी एजेंसी, हैज़ ऑल्सो वॉन इट ट्वाइस। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर देन दीज दोज आर पीपल। ठीक है, शुड नो दिस। तो क्लिक केमिस्ट्री क्या है? अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि रिएक्शन होती है ना, नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होती है। अगर हम इसमें ये कहते हैं कि अगर हम कॉपर कैटेलाइज्ड एजाइड एल्कलाइन साइक्लो एडिशन कर दें हम, ठीक है, दैट ये वन सच रिएक्शन इज दिस। अगर हम इसमें ये, ठीक है, देन दिस रिएक्शन बिकम्स फास्ट एंड इट दिस रिएक्शन इज लाइक अ क्लिक। जैसे सीट बेल्ट बांधते हैं, क्लिक होता है ना। सी आफ्टर एडिशन ऑफ दिस कॉपर आयन, this reaction get catalyzed fast and it attaches to it with a click, that is why it is known as click chemistry। इतना आपको पता है, it is good, you are good to go। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस आपको पता होना चाहिए क्लिक केमिस्ट्री बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री पे मिला है एंड यू आर गुड टू गो विद दैट। नेक्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है एलेन आस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को। ठीक है, यू शुड नो दीज। एंड इनको मिला है फॉर देयर एक्सपेरिमेंट विद एंटेंगल फोटॉन्स, establishing the violation of Benn inequalities and pairing quantum information। ये इनका एक कहता है कि अगर दो पार्टिकल्स क्वांटम स्टेट में है, अगर हम एक की प्रॉपर्टी डिडक्ट कर लें तो दूसरे की हम ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लेंगे। बस मतलब इंटैंगल्ड फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को डिड्यूस करने के लिए इनको इनके एक्सपेरिमेंट के लिए मिला। ठीक है, ये देखिए लिखा, दे डेमोन्स्ट्रेटेड द पोटेंशियल टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल पार्टिकल्स दैट आर इन एंटेंगल स्टेट। इंटैंगलमेंट हमने पहले देखा था लास्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम IT इन कंप्यूटर्स जहाँ पे हमने कवर किया होगा उसमें। फिर भी देख लेते हैं, एंटैंगलमेंट इज व्हेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सच एज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स शेयर अ सिंगल क्वांटम स्टेट। क्वांटम स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स होते हैं, व्हेन दे आर टुगेदर, दैट स्टेट इज नोन एज एंटैंगल्ड और एंटैंगलमेंट। ठीक है, दे ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड अ फिनोमेना कॉल्ड क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ठीक है, अ वे ऑफ ट्रांसफरिंग एन अननोन क्वांटम स्टेट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। ठीक, दिस इज द सेकेंड थिंग। तो आपको ये पता चल गया, बस दैट इज गुड टू गो। बेल इक्वालिटीज क्या था, जिसके लिए थर्ड इनका जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इनकी रिसर्च का, वो था बेल इनइक्वालिटीज मेक इट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स की जो इनडिटरमिनेंसी होती है एंड एन ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन यूजिंग सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड हिडन वेरिएबल्स। यू शुड जस्ट नो दिस कि बेल इनइक्वालिटीज़ की जो है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। जो क्वांटम मैकेनिक्स की इनडिटरमिनेंसी होती है उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है बेल इनइक्वालिटीज़। यू नीड नॉट टू गो इनटू मच डिटेल, आई कुड एक्सप्लेन दिस इनटू मच डिटेल बट इट इज़ ऑफ योर नो यूज़ फॉर नाउ। ठीक है, बेल इनइक्वालिटीज़ आपको बस ये पता होना चाहिए कि वाई दे हैव वॉन दिस नोबेल प्राइज। तो आपको इस वर्क के लिए एप्लीकेशन क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग इज वेरी मच इन न्यूज़। यूपीएससी ऑल्सो आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट क्वांटम क्यूबिट्स 2021 में 2022 में पूछा यूपीएससी ने। ऑलराइट, सो यू शुड नो दैट।
तो इट विल हैव implications in quantum computers, quantum networks and secure quantum cryptography and it would lay the foundation for research in quantum information science. ठीक है, इसके बाद आता है नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022. ठीक है, 2022 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको मिला? ये मिला है बेसिकली, इन्होंने एंशिएंट डीएनए के ऊपर काम किया था एक, इनको मिला है स्वीडिश जीन साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये बोलते हैं जीनटाइसिस्ट, स्वांट पैबो. ठीक है, ये स्वीडिश हैं इसलिए इनका नाम ऐसा है. ठीक है, इन्होंने ही सीक्वेंस द जीनोम ऑफ अ निएंडरथल. निएंडरथल कौन थे? निएंडरथल थे, दे डेवलप्ड आउटसाइड अफ्रीका एंड पॉपुलेटेड यूरोप, वेस्ट एशिया अराउंड 400,000 ईयर्स अगो, और ये 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए. ठीक है, तो निएंडरथल्स बेसिकली वेरी क्लोज टू होमो सेपियंस, जो कि हम लोग हैं. दीज वर आउटसाइड अफ्रीका एंड पॉपुलेटेड द एरिया ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया अराउंड 400,000 ईयर्स अगो, बट दे गॉट एक्सटिंक्ट. ठीक है, मतलब जिनको नोबेल प्राइज मिला, दैट स्वीडिश साइंटिस्ट, ही एनालाइज्ड एंड ही सीक्वेंस द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ निएंडरथल्स. ठीक है, तो इस वजह से इनको मिला. अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, पूछेगा क्या? पूछ चुका है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज रिलेटेड टू मैटरनल साइड, कि मदर से आता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, यू शुड नो दिस फैक्ट, मोस्ट एसेंशियल थिंग. यहाँ पे गलत लिखा है, नो, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम ऑल एंसेस्टर्स, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मैटरनल एंसेस्टर्स. ठीक है, न्यूक्लियर डीएनए इज इनहेरिटेड फ्रॉम ऑल एंसेस्टर्स. देन न्यूक्लियर डीएनए लीनियर शेप में होता है एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज सर्कुलर शेप. ठीक है, सेल्स जीनोम इंक्लूडिंग, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स जीनोम सारी. ठीक है, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम जो होता है, इट कंटेन्स, मतलब एमडीएनए कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम. ठीक है, ऑलराइट. देन शेयर इन जेनेटिक मेकअप, इट मेक्स अप टू 99.75 लगभग, इट मेक्स न्यूक्लियर डीएनए. 0.25% अराउंड होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. ठीक है, एंड इट रेप्लिकेट्स ओनली ड्यूरिंग द सेल क्रिएशन. जब सेल क्रिएट होते हैं इट रेप्लिकेट्स ओनली देन, बट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली. तो इन्होंने डिस्कवरी ये की थी कि जो प्रीवियसली अननोन होमिनिन डेनिसोवा थे, he made the discovery of previously unknown hominin Denisova that was discovered in 2008 from southern part of Siberia. ठीक है, ये बेसिकली उन जीनोम्स पे, एंशिएंट जीनोम्स क्या हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो थे, ट्रैप थे, वी हैव रीडिस्कवर्ड देम एंड वी आर स्टडिंग ऑन दैट. तो इनको उस लिहाज से उस फील्ड में मिला था. सिग्निफिकेंस इनका ये कि हम बेटर इवोल्यूशन को और माइग्रेशन को हम बेटर तरीके से स्टडी कर पाएंगे एंड वी कैन अंडरस्टैंड दी फ्लो और ऑफ द ह्यूमंस, मतलब जैसे कैसे ग्रोथ हुई ह्यूमन सोसाइटी की, कैसे ह्यूमंस की एक्चुअली ग्रोथ हुई, कैसे जो आज फॉर्म में हम ह्यूमंस देख रहे हैं, हाउ दे इवॉल्व. ठीक है, तो द फिनोमिना ऑफ इवोल्यूशन कुड बी बेटर अंडरस्टैंड, बेटर स्टडीड थ्रू हिज रिसर्च. नाउ वी हैव डन दिस ऑल्सो. ठीक है, तो अब हमारे पास वी हैव इन हैंड few topics left. We have completed almost all the topics. We have with us left alternative energy. We have with us these miscellaneous parts and also the updated. Then we have miscellaneous in this. We have updated in. ठीक है, so we will cover this in another video. All right, we'll keep this short and we'll cover this in another video. चलो, thank you for joining me and hope your preparation is going well. Just stay calm and confident about your preparation. Have belief in yourself. Eventually you will clear that cutoff list. Cutoff is also going down actually. You must have seen the cutoff marks. It is around 88 point some points. तो आपको उतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. काम रहना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपना काम करते रहना है. ठीक है, तो काम दो चीज़. You have to keep studying. You need to have patience, calmness and remain confident. Have self belief, you will do it. You have studied for this much time. Your hard work would pay now. The fruits of hard work would come eventually. So you need to have that self belief. है ना? All right, so let's wind up this session.
and we'll meet in next session where we'll cover that alternative energy portion and the miscellaneous and the leftovers from updated part 1 and updated part 2. ठीक है, so we'll cover that. Till then, goodbye, have a nice day and keep studying. We'll meet next time. Bye.